So thank you very much, everyone. It's really difficult to be the last speaker, trust me. And this is what I am feeling now, that everyone has deep pockets and now I'm with empty pockets. What should I tell you new? Because बाकी जितने भी guest speakers हैं, they already touched the different areas related to the research methodology. So let me tell you one thing first about research methodology. Research is like a technology. It's like your mobile phone. How much you will play with it, that much you will learn. So research methodology, when you are going to apply it, that much you are going to learn it. Trust me, जितने भी आप lectures ले लें, जितने भी आप books पढ़ लें, लेकिन it's really difficult for you when you will be in practical field, then you are going to go through all these previous readings, lectures, books and all this. Right now, related to the research methodology, I am well equipped with different books and the resources from where you can get the free books. Most of the time, the problem is about the resources and about the references, which I am going to talk about today. जब हम रेफरेंसेस की बात करते हैं या रिसोर्सेज की बात करते हैं, सबसे पहले ये होता है जिस तरह से मेरे डियर कोलीग्स ने और पर्टिकुलरली डॉक्टर अदीला ने बहुत अच्छा ग्राउंड मेरे लिए सेट किया. And she helped me a lot to speak from primary and the secondary sources. जब हम primary and secondary sources की बात करते हैं, so first of all जो most important thing है from where we are going to access data. I can quote many students जो mostly जब search करते हैं तो सबसे पहले जो उनके पास पेज नजर आता है, this is the Wikipedia. We are simply going to search it and we can be, very much rich in any topic कि हाँ हमें इसके बारे में इल्म है. So what we do कि हम लोग विकिपीडिया से सर्च करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं. हम सब लोग अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स रह चुके हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कॉपी करते हैं तो वो थोड़ी सी भी जहमत नहीं करते कि उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर लें. Trust me, it's a wastage of time for yourself and for your teacher as well. बजाय इसके कि वो जो मेजर कंटेंट होता है जिस पर वो आपको गाइड करें, वो आपके उन रिसोर्सेज को देख के सर पकड़ के बैठ जाते हैं. So if you want real guidance from your supervisor, so please try to get the data from the authentic sources, from the different websites. सोशल साइंसेस के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले JSTOR का नाम सुना होगा. सो JSTOR इज नॉट एक्सेसिबल एट योर होम. JSTOR is accessible at your university because university has access to JSTOR because university is paying to these sites for yourself. Whenever you are going to search related to your topic, just follow the JSTOR and many other websites I can name it here. लेकिन यहाँ पर आपको जो डाटा अगर मिलेगा that must be the authentic one, जो कि एक रिसर्च के बाद आपको वहाँ पर अप्लाई होगा. जी I will jump into later on it, okay? So जब हम JSTOR की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे authentic जो है आर्टिकल्स मिल जाएंगे. It's not only about the social sciences but you can find the literature related to the natural sciences as well. जो मैडम का क्वेश्चन है related to the digital library, it's all about Higher Education Commission recently set up the digital libraries for all the different natural and the social sciences where you can get the data. So बहुत सारे जो बुक्स हैं आपको वहाँ से मिल सकती हैं until unless your university have the access to that digital library. जिस तरह से हम लोग कल बात कर रहे थे Turnitin की. Turnitin is software which HEC is going to distribute with the different institutions. You cannot get your own Turnitin unless कि आप उसके साथ registered ना हो, आप पेमेंट ना करें. So इसी तरह से कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जहां पर आप लोगों को पे नहीं करना पड़ता. आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो आप लोगों के बिहाफ पर पे कर रहा होता है और आप उन वेबसाइट्स को आप यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस के अंदर आप यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? फर्स्ट वन. सो नाउ अभी तक मेरी स्लाइड्स चल नहीं रही, सो आई डोंट नो, आई एम कंप्लीटली ब्लाइंड कि आप लोगों को कहां पर लेकर जाऊं. एनीवे
So, जब हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्सेज की और सेकेंडरी सोर्सेज की, जिस तरह से आपने रिसर्च में सबसे पहले कि रिसर्च क्या है, इसी तरह से आपने डिफरेंट मेथड्स रिसर्च के पढ़े हैं. सो द लास्ट पार्ट इज अबाउट द रेफरेंसेस एंड अबाउट द सोर्सेज कि जिनकी बेसिस पर प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज आपने यूज किए हैं अपनी स्टडी के अंदर. अब आपने उनको एक सिस्टमैटिक शेप किस तरह से देनी है. जिस तरह से मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है विकिपीडिया की, अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो उसी का लिंक आप लोग नीचे लिख देते हैं. उसको लिंक को लिखने का भी एक तरीका होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू रिट्रीव द डेटा, उसके डेट, उसका ऑथर कौन है. So it's really important to know about the citation के accurate आप citations किस तरह से देंगे. So my presentation today is divided into the 3 parts. Number 1, I am going to talk about references क्या हैं, फिर references जो हैं वो क्यों जरूरी हैं, references किस तरह से देने हैं और references कौन से देने हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पर आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, आपको मेरी कोई बात अच्छी लगती है या समझ में आ जाती है, वो बात आप अगर कोट कर रहे हैं, क्या वो जरूरी है उसको रेफरेंस देना या नहीं देना. ठीक है. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन which I will give you answer of these 4 questions. My second part of the presentation is related to the activity which is the workshop activity. So मेरे पास कुछ जो है वो परफॉर्मेंस है. I will share it with you and you will later on submit it to me and then we will make the comments on it. So third part of my session is related to the software of रेफरेंसेस के. मेंडले सॉफ्टवेयर आप लोगों ने नाम सुना होगा. तो मेंडले सॉफ्टवेयर कि आप किस तरह से बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डिजिटल एज, आप किस तरह से उन रेफरेंसेस को डिजिटलाइज वे के अंदर आप उनको ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज मुझे याद है कि जब मैं अपनी प्रेजेंटेशंस बनाती थी तो या असाइनमेंट अगर मैं बनाती थी तो मैं मैनुअल रेफरेंसेस देती थी कि पहले ऑथर का नाम है, देन आई हैव टू यूज द कॉमा, देन आई नीड टू यूज द पैरेंथेसिस, देन पैरेंथेसिस क्लोज्ड. सो ऑल दीज आई वाज डूइंग मैनुअली. सो नाउ द सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड. देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स व्हिच यू कैन यूज ड्यूरिंग योर रिसर्च. सो यू कैन सेव योर टाइम, you can save your energy and you can put all your energies towards the positive activity. Okay, rather than कि आप बैठ के कॉमा और वो ग्रामर जो है पैरेंथेसिस आप अगर ठीक कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप उन रेफरेंसेस को सीख लेंगे. ठीक है. सो अनफॉर्चुनेटली यू गाइज डोंट हैव लैपटॉप राइट नाउ विद यू. सो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी कि एक जो डिजिटलाइज एक्सरसाइज है उसको मैनुअली मैं आपको किस तरह से बताएं. सो इट्स अ चैलेंज फॉर मी. लेट्स सी क्या होता है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक भी मेरी प्रेजेंटेशन नहीं चली. एनीवे, रेफरेंसेस क्या हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू गाइस कि रेफरेंसेस क्या हैं आप लोगों के नजदीक जब आप रिसर्च में देते हैं. ठीक है. तो आप कैसे उसको अंडरस्टैंडिंग है आपकी रिलेटेड टू द रेफरेंसेस. सो नाउ ओवर टू यू हु वांट टू गिव मी आंसर. रेफरेंसेस जी प्लीज. रेफरेंसेस क्या है ये पूछ रही है अभी. हाउ टू गिव रेफरेंस. रेफरेंस क्या है. First of all, whenever we do a research, we generally look into certain topics and we have previous researchers doing something or doing some task on that particular topic. So so whenever we copy them or we get the idea from them, with there we have to follow typical norms. We have to give the reference or give credit to the researcher. So they are the references to which we give credit to that. That's perfectly fine. So it means that reference is particularly when you are going to give credit to others of their work. For example, अगर कोई हिस्ट्री के अंदर कोई बुक लिखी गई है, जिस तरह स्टेनले वॉलपर्ट की एक बुक है बड़ी फेमस है, तो अगर आप उसके अंदर अगर कोई भी आप उसका कोई आर्ग्यूमेंट अगर आप लेते हैं और आप उसको रेफरेंस नहीं देते तो उसको हम लोग क्या कहेंगे. एकेडमिक डिसऑनेस्टी. ठीक है. कि बीइंग ए एकेडमिक, बीइंग अ रिसर्चर,
तो हमारी सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से क्या होना चाहिए, एकेडमिक ऑनेस्टी। एकेडमिक ऑनेस्टी कहाँ से आती है कि जब आप किसी के भी काम को पढ़ते हैं, किसी के रिसर्च को, किसी के आर्ग्यूमेंट को, किसी भी मेथड को, अगर किसी ने थ्योरी को अप्लाई किया है, ठीक है, यू कैन यूज द रेफरेंस कि मैंने वहां से इसको फॉलो किया है। बहुत सारे लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर भी रेफरेंसेस उस तरह से नहीं देते। लेट मी गिव यू एग्जांपल। जिस तरह से अगर कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च हो रही है तो वहां पर हर एक ने अपनी मेथोडोलॉजी, कुछ लोग जो है वो टेम्पलेट को फॉलो कर लेते हैं, कुछ उसको अडेप्ट कर लेते हैं विद सर्टेन चेंजेस, उसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगेन वहां पर रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। सो जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर भी आप अगर किसी का टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं, किसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर आपको रेफरेंस देना जरूरी होता है। अदरवाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी टेबल और इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनीथिंग, या फिर कुछ डायग्राम्स अगर आप खुद बना रहे हैं, सो यू नीड टू मेंशन दैट दिस वन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्चर। इट मींस यू आर द रिसर्चर एंड यू आर द ऑथर ऑफ दिस बिकॉज यू फॉर्मुलेटेड इट। इज इट क्लियर? सो इसमें बजाय इसके कि आप उसको ब्लैंक छोड़ दें, आप वहां पर रेफरेंस ना दें, बिकॉज दिस इज योर प्रोडक्ट एंड यू आर गोइंग टू बी द ऑनर ऑफ इट, ठीक है। तो वहां पर आपने ये लिखना है कि प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्चर। अगर आपने कहीं से डायग्राम ली है, सो यू हैव टू मेंशन द सोर्स। इज इट क्लियर? सो हम लोग जो है वो पहले चलते हैं कि रेफरेंस में और साइटिंग में क्या डिफरेंस है। जिस तरह से यहाँ पर हमारे एक कुलीग ने बताया है कि रेफरेंस जो है वो किसी को भी क्रेडिट देना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट रेफरेंस एंड द साइटिंग? सो देयर इज रेफरेंस मीन्स कि जहां पर आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं और फिर उसके बाद आप उनको कोट कर रहे हैं। साइटिंग इज डिफरेंट, लाइक साइटिंग कि आप उसको रेफरेंस किस तरह से दे रहे हैं। जिस तरह से हम लोग एपीए मैनुअल को कहते हैं, तो उसमें हम रनिंग रेफरेंस देते हैं, जिसमें हम पैरेंथेसिस के अंदर ऑथर का नेम और फिर उसमें पब्लिशिंग डेट जो है वो ऐड कर देते हैं। बट अगेन लेट मी ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड्स द मैनुअल ऑफ योर यूनिवर्सिटी। आपकी यूनिवर्सिटी आपको कौन सा मैनुअल देती है? मैनुअल मीन टेम्पलेट। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, एमफिल की रिसर्च कर रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट गो ब्लाइंडली। सिंपली जब आपको असाइन किए जाते हैं टास्क, तो आप क्या किया करें, अगर कोई टॉपिक आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, उनको बताएं कि हमें टेम्पलेट दें, हमने किसको फॉलो करना है। उसमें फॉन्ट साइज से लेकर रेफरेंसेस तक आपको गाइडलाइन दी जाती है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इतने वर्ड्स का होना चाहिए, आपका पूरा थीसिस इतने वर्ड्स का होना चाहिए और आपने रेफरेंसेस जो है वो किस तरह से देने हैं। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो पूरी एफर्ट है वो जाया होने से बच जाएगी एंड यू आर स्टार्टिंग फॉलोइंग द मैनुअल फ्रॉम द डे 1। इज इट क्लियर? सो उसमें जो है वो साइटिंग के अंदर जब आप डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट जहां से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको आप साइट करना शुरू करते हैं। आई विल गो क्विकली, आई विल टेक ओनली 15 मिनट्स फॉर दिस स्लाइड्स, सो ज्यादा बोर नहीं करूंगी आपको मैं। अगेन जब हम बात करते हैं रेफरेंसेस की और बिब्लियोग्राफी की, हमें डिफरेंस बहुत कम नजर आता है, मोस्टली जब हम स्टूडेंट लेवल पर होते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंसेस एंड द बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस में क्या है कि आप रेफरेंसेस के अंदर उन सोर्सेज को, ओनली वन लाइनर डिफरेंस आई एम गोइंग टू टेल यू। रेफरेंसेस के अंदर आप उन डॉक्यूमेंट्स को कोट करते हैं या साइट करते हैं जो आपने अपनी रिसर्च के लिए यूज किए होते हैं। बिब्लियोग्राफी के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। व्हाई? क्योंकि अगर आप रिसेंटली, जिस तरह से मैंने डॉक्टर अदीला का सेशन मैंने अटेंड किया है, वहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें आर्टिकल 370 एंड 35A की बात करते हैं, सो दिस वन इज द पर्टिकुलर टॉपिक। यू आर गोइंग टू साइट 50 बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, बट व्हाट अबाउट टू साइट दी अदर बुक्स? जिस तरह से उनको अगर आप कोट करते हैं तो उन बुक्स का आप रेफरेंस दे देते हैं। ऐसी बुक्स जो आपकी स्टडी के अंदर यूज नहीं हुई, लेकिन आप रीडर की जो रीडर है उसको फैसिलिटेट करने के लिए कि इस सब्जेक्ट के ऊपर ये बुक्स भी हैं लेकिन डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर अवेलेबल हैं। इट मींस यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द बुक्स अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट जो आपने
आपने यूज की हैं. इज इट क्लियर? इट मीन्स कि रेफरेंसेस इज पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ द बुक्स जो आपने यूज की हैं, पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ दिस रिसोर्सेज. लेकिन बिब्लियोग्राफी के अंदर आप उन बुक्स को भी ऐड कर सकते हैं जो आपने अपनी रिसर्च के अंदर यूज नहीं की. इज इट क्लियर? सो इसी तरह से आई विल शेयर ऑल दी स्लाइड्स विद यू एंड यू कैन सी इट. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई रेफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट. यहां पर कुछ जो है मैंने 5 ऐड की हैं, डिफरेंट रीजंस. इफ यू वांट टू ऐड any other, so I would be happy. The most important is plagiarism. Plagiarism के लिए हम सब लोग बड़े परेशान होते हैं. स्टूडेंट लेवल के ऊपर हमें ये भी किसी वक्त बताया गया था, लेट मी शेयर विद योर परमिशन, कि आपका कोई भी टेक्स्ट है, अंग्रेजी में है, आप गूगल पे जाएं, गूगल ट्रांसलेटर पर जाएं, उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, फिर से इंग्लिश में करें, आपका प्लेजरिज्म खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये रीफ्रेजिंग हो जाएगी और आपकी एफर्ट्स जो है आपको पुट नहीं करनी पड़ेंगी. सो डू यू रियली थिंक दिस इज द एकेडमिक जो ऑनेस्टी है? क्या आप वाकई ही जो है आप किसी के आइडिया को अपने आइडिया के अंदर कन्वर्ट करें विदाउट गिविंग देम क्रेडिट? ठीक है, सो इट मीन्स बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है, 3 पैराग्राफ लिखे होते हैं, वहां पर उन्हीं 3 पैराग्राफ्स में सबसे लास्ट पर लिखा होता है कि ये मैंने फलां बुक से लिया है. वो चाहे वो एपीए मैनुअल हो, चाहे त्रॉबियन मैनुअल हो, आप वहां पर ऐड कर देते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी करते हैं कि पहली जो पैराग्राफ है वहां पर रेफरेंस ऐड कर दिया, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आईबर्ड लगा दिया. एक तो हमें आईबर्ड मिला हुआ है, IBID, ठीक है, हाँ ठीक है, बगैर सोचे समझे हमने आईबर्ड 10-15 एक पेज पे लगाने होते हैं. सो व्हाई? So do you really think that your research is going to be the authentic one and it's going to increase the interest for the reader? No. It means कि आपने जहां से भी मटेरियल लिया है, it would be great कि अगर आपके एक सेंटेंस के अंदर 2 रेफरेंसेस आ जाए, until unless you are going to consult the different books for these two sentences only. Let me give you example. जिस तरह से हम लोग चाइल्ड मैरिज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, सो हम लोग ये कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान. सो रीडर को क्या पता कि चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? क्या यहां पर रेफरेंस जरूरी है या नहीं है? आई वॉन्ट योर आंसर. वाई? देयर आर 2 reasons. आर वी गोइंग टू मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट कि पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड मैरिज इज वेरी कॉमन? अगर हम इसका रेफरेंस और स्टैटिस्टिक बेसिस के ऊपर हम नहीं करते, इट मींस क्या है कि वी आर गोइंग टू गिव द स्वीपिंग स्टेटमेंट. सो वी नीड टू गिव द रेफरेंसेस. And again, if you are following the Throbian manual in which you can add the different footnotes. फुटनोट्स और रेफरेंसेस में फर्क है. फुटनोट्स के अंदर आप डिटेल ऐड कर सकते हैं. जिस तरह से आपने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइल्ड मैरिज है वो बहुत कॉमन है. आपने स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लिए? वो आपने किसी भी रिपोर्ट से लिए, पब्लिश सर्वे से लिए, आपने उसका रेफरेंस दे दिया और फिर उससे मिलता जुलता अगर कोई और सर्वे है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं. बट वी कैन यूज द वर्ड सी ऑल्सो. इट मीन्स एक ही सेंटेंस के लिए हम कितने रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं? मल्टीपल इन दी थ्रॉबियन मैनुअल एंड इन दी फुटनोट्स. इज इट क्लियर? अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई एक रीडर आपकी ये स्टेटमेंट पढ़ रहा है कि चाइल्ड मैरिज इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, तो इट मीन्स कि योर स्टेटमेंट इज नॉट द स्वीपिंग स्टेटमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड द डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर दैट authentication. You are not going to add only one survey, but you are also referring to your reader कि हमारे पास इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, और भी मटेरियल अवेलेबल है, आप मजीद जो है इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं. ये यहाँ पर भी ऐसा ही बताया गया है. इट मीन्स कि आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर 4 से 5 आप बुक्स ऐड कर सकते हैं, 4 to 5 रिपोर्ट्स एक ही आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए. सो लेट मी ड्रैग यू बैक टू दी वर्ड
चाइल्ड। सो यहाँ पर हम फुटनोट लगा सकते हैं, कैसे? चाइल्ड की डेफिनेशन देने के लिए कि चाइल्ड की डेफिनेशन पाकिस्तान के अंदर क्या है, क्या अगर वो 18 ईयर है, 16 ईयर है या वट एवर। सो उसमें हम लोगों को फिर डेफिनेशन जो है वो वेरी कर रही होती है। जिस तरह सिंध के अंदर डेफिनेशन चाइल्ड की जो है वो 18 ऐड की जाती है, बाकी प्रोविंसेस के अंदर जो है वो 16 की जाती है। सो इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट वहां पर पूरा एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। एंड अगेन वी कैन मेक द कंपैरिजन विद द डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, अब ऊपर तो हमें सिर्फ एक सेंटेंस नजर आ रहा है, लेकिन हम उसके नीचे कितनी डिटेल ऐड कर रहे हैं कि हम अपनी इस स्वीपिंग स्टेटमेंट से बचने के लिए हम डिफरेंट बुक्स को भी रेफर कर रहे हैं। और अगेन हम चाइल्ड को, रीडर को बताने के लिए कि चाइल्ड मैरिज जो है वो उसकी डेफिनेशन चाइल्ड की क्या है, उसको भी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए करें। बट दिस practice you can do only in the footnotes. Is it clear? So this one is about the practical learning. So how you can cite all these references and you can avoid from the sweeping statements. Is it clear? Can we move on? Okay, that will it will also help you to avoid from the plagiarism, and again credibility of your work, which is very important. So it will also strengthen the credibility of your work. So apart from that, so इसमें demonstrate your knowledge. So how? कि जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि अगर आप मल्टीपल जो है सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, अगर आपने एक सेंटेंस एक पैराग्राफ के लिए, तो इट मीन्स के ऑटोमेटिकली रीडर को होता है कि हाँ इसने डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट किया है एंड दिस रिसर्च कैन बी दी ऑथेंटिक वन। इज इट क्लियर? उसके बाद है टू शो दी ओरिजिनल सोर्स, कि आपको मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो भी मिल जाते हैं आपके रीडर को और आपकी रिसर्च भी ऑथेंटिक होती है। कैन वी मूव ऑन? सो प्रिंसिपल ऑफ रेफरेंसेस, के रेफरेंस के जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, हु रोट इट, कि जिसने लिखा है क्रेडिट उसी को ही जाना चाहिए। सो व्हेन वाज इट पब्लिश्ड, उसकी पब्लिशिंग डेट क्या है, आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है कि क्या वो बुक जो है उसका एडिशन तो नहीं है, वो जिस डेट पर पब्लिश हुई है वहीं पर ही बताया जा रहा है। एंड अगेन व्हाट इज द टाइटल, सो वी नीड टू मेंशन अबाउट द टाइटल ऑफ द बुक, ऑफ द आर्टिकल, ऑफ द जर्नल का नेम भी हमें बताना पड़ता है। सो वेयर कैन यू फाइंड इट, कि उसमें इफ इट्स ऑनलाइन सो यू आर बाउंड टू गिव द DOI नंबर, DOI, DOI, ठीक है। DOI इज द एब्रिवेशन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है। अगर आपके पास DOI नंबर नहीं है देन यू आर बाउंड टू मेंशन ऑनलाइन सोर्स URL। URL इज द एब्रिवेशन ऑफ यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास अगर DOI नंबर अवेलेबल नहीं है किसी भी आर्टिकल का, तो आपने क्या करना है कि वहां पर मेंशन करना है URL नंबर। अगर URL नंबर अवेलेबल नहीं है तो DOI नंबर, अदरवाइज अगर वो प्रिंट फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम नंबर, बुक की पब्लिशिंग कंपनी, पब्लिशिंग डेट, सो यू आर बाउंड टू फॉलो इट। अगर हम लोग जनरली जो है लेट मी एंगेज यू रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है DOI नंबर इज इंपॉर्टेंट, URL इज इंपॉर्टेंट, इसके अलावा जो है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे मिलकर रेफरेंस बनता है, ऑथर नेम और पब्लिशिंग ईयर और जहां से पब्लिशिंग इंस्टीट्यूशन और सॉरी प्लेस और टाइटल और नो नॉट लैंग्वेज, अगर एडिटेड है तो एडिटेड वॉल्यूम, पब्लिशिंग ईयर डेफिनेटली। सो हम इन सारी जो हमारे पास मटेरियल आता है एक रेफरेंस का, उसको हम मुख्तलिफ तरीकों से साइट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसको MLA स्टाइल में लेकर जा सकते हैं, हम उसको APA मैनुअल में लेकर जा सकते हैं, त्रॉबियन मैनुअल में लेकर जा सकते हैं। अब तक हम लोग 6th मैनुअल फॉलो करते रहे APA का, लेकिन अब जो है वो 7th एडिशन आ चुका हुआ है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, जब भी आपने, क्योंकि रिसर्चर आपने हमेशा सिर्फ अपने थीसिस ही सबमिट नहीं करवाने, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी मच
क्यूरियस टू राइट अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल, तो उसमें आपने किसी भी जर्नल में जब आपने आर्टिकल भेजना है तो तब सबसे पहले आपने उसका टेम्पलेट को देखना है कि वो कौन से मैनुअल को फॉलो कर रहा है, ताकि आपकी मेहनत जाया ना जाए. इज इट क्लियर? जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? मेरा ये क्वेश्चन है रेफरेंस के लिए बुक्स जो जिस बुक का हम रेफरेंस ले रहे हैं उसका कंडीशन क्या है, यानी कि मैं थीसिस लिख रहा हूँ, मैं उसमें जाहिर बात है उसमें डाइजेस्ट का वाला अभी दे सकता हूँ, कौन कौन सी बुक्स उस रेफरेंस में हम दे सकते हैं, कौन सी नहीं, और उस बुक्स कितनी पुरानी होनी चाहिए और नई. देखें, अगर आप कश्मीर पर रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पर आप मेरी मोहब्बत का तो अफसाना तो नहीं बता सकते ना, ऐसे ही है. तो इट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कुछ जो रेलिवेंट लिटरेरी मटेरियल क्या है. एंड अगेन आई वांट टू ऐड वन थिंग मोर, जो भी ऑथेंटिक बुक्स कंसीडर की जाती हैं, ठीक है, या फिर रिनाउंड बुक्स जो आपसे रेलिवेंट होंगी तो आप उनको ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल 370 यू कैन नॉट निग्लेक्ट द बुक ऑफ एजी नूरानी, ठीक है. तो इट मीन्स कि आपको पता है कि आपसे रेलिवेंट मटेरियल क्या है. सो अगेन इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल सोर्सेज, ठीक है. एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ऑल दीज ट्रेनिंग्स ऑन रिसर्च कि आप एग्जैक्ट फाइंडिंग जो आपकी रेलिवेंट सोर्सेज हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे. जिस तरह से डॉक्टर साहिबा जो है वो बता रही थी कि आर्काइव्स हैं. आर्काइव्स इट मीन्स, डॉक्टर साहिबा मे बी आई कैन बी रॉन्ग, आपने यहाँ पर ऐड किया था कि 25 इयर्स के बाद, सो विच आई लर्न, तो उसमें 40 इयर्स का भी टाइम पीरियड था कि उसके बाद उसको जो है वो डीक्लासिफाइड डाटा को किया जाता है. एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर नेशनल आर्काइव्स मौजूद हैं, इसी तरह से लाहौर के अंदर पंजाब आर्काइव्स भी मौजूद हैं. इसी तरह से द नेशनल आर्काइव लाइब्रेरी इज ऑल्सो अवेलेबल इन लंडन. ये जितने भी आपको लेटर्स डिफरेंस मिलते हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि कायद आजम की ये राइटिंग्स थी, इलामा इकबाल की ये राइटिंग्स थी, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर ये राइटिंग्स उसी तरह से अवेलेबल है. एंड अगेन जस्ट लेट मी कंप्लीट. ओके, उसमें जो है इसके बाद एक और मैं बता दूं कि इन रिसोर्सेज को आपने यूज कैसे करना है. हम जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, मोस्टली जो है बुक खोलते हैं और वहां पर हम उसको वहीं पर ही रख देते हैं, शेल्फ्स पर रख देते हैं, लेकिन जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते. सो यू नीड टू वेयर प्रॉपर ग्लव्स, यू नीड टू यूज प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स कि आप हाथ से वहां पर इन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको नहीं खोलते. आपको बकायदा जो है वो पलटने के लिए आपको इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं. फिर आपने जहां पर करना है, जिस तरह तस्बीह की तरह के आपको वो डिवीजन दी जाती है कि वहां पर आप रख के आप उन सोर्सेज को यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर दी इंपॉर्टेंट सोर्सेज एंड यू कैन नॉट यूटिलाइज इट रैंडमली. जी डॉक्टर साहिबा, नाउ ओवर टू यू. फॉर इंस्टेंस आप काम कर रहे हैं अगेन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो आप जो है सोर्सेज जो के रिलेट कर रहे हैं कश्मीरी सोसाइटी पे, सोर्सेज जिनके ऊपर बात हुई है कश्मीरी पॉलिटिक्स पे, सोर्सेज जहाँ पे बात की है पार्टीशन के टाइम की, सोर्सेज जहाँ पे जो है जैसे अभी फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा कि आप जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो वहाँ एक मोहम्मद अफसाने की बात आप नहीं कर सकते, लेकिन टू रिलेट टू द जनरल ऑडियंस आपको लगता है कि उस एक मोहम्मद अफसाने में कोई एक अफसाना ऐसा था, फॉर इंस्टेंस नॉन फिक्शनरी या फिक्शनरी, जो कि जहाँ डिटेल बात की है, फैज की में फॉर इंस्टेंस बात की है रिलेटेड टू कश्मीर, आपका काम है डिग अप करना, आपका काम है निकालना वो सोर्स जो है वो आप उसको यूटिलाइज. उन्होंने बिल्कुल राइटली जो है वो आपको पॉइंट आउट किया है कि आपने रेलेवेंसी जो है वो निकालेंगे, वो पढ़ने के बाद ही आपको रेलेवेंसी और आपकी स्टडी का स्कोप आपको बताएगा कि विच लिटरेचर इज रिलेटेड और रेलेवेंट टू वो काइंड ऑफ लिटरेचर आप देख सकते हैं. जॉनरास जो मल्टीपल जॉनरास होंगे, वो फिक्शन भी हो सकता है, नॉन फिक्शन भी हो सकता है, और उसको कोर्स या साइड कैसे करना है. डॉक्टर साहिबा, आई वांट टू ऐड वन थिंग मोर. फॉर एग्जांपल, अगर आप कश्मीरी लिटरेचर के ऊपर बात करना चाहते हैं या फिक्शन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो देन डेफिनेटली यू विल गो फॉर ऑल दिस लिटरेचर. उसमें अफसानों पर आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सोर्सेज ही वो सिंपली आपके टॉपिक से रिलेटेड आपने रेलिवेंट मटेरियल डिग आउट करना है, ठीक है. सो अगेन कि आपने कौन से सोर्सेज जो है आप यूज कर सकते हैं और आप यूज
नहीं कर सकते कि जिसमें आप जनरल नॉलेज जो है, क्या आपको इसको साइट करने की जरूरत है? जिस तरह से हम लोग बात करते हैं sovereignty belongs to Allah, so do you need reference? So it means जो जनरल नॉलेज है, you cannot relate, you have no need to give the reference. And again historical overviews, आप उसको किसी भी की पर्सपेक्टिव को इस तरह से साइट नहीं कर सकते. फिर your own ideas, अगर आपके अपने आइडियाज हैं कि मैंने यहाँ से मुजफ्फराबाद से निकल के रावलाकोट जाना है, this is your idea. And again you can also relate with your research कि आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, that was your own idea. ठीक है. यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल कोट करना चाहती हूँ. अभी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर एक पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यू डोंट और आपको यू डोंट नीड टू साइट कि अदर जो लोगों के जो आइडियाज हैं और वर्ड्स हैं, आपको एक्चुअली उनको यूज करने की जरूरत नहीं होती. जिस तरह बुक्स हैं आप उनको रिफ्रेश कर सकते हैं, उसको रिफ्रेजिंग में किसी के भी आइडिया को आपने रेफरेंस ऐड करना है. फिर स्टैटिस्टिक्स है, बहुत सारे ऐसे जो है वो जो स्टैटिस्टिक्स है आपने उनको ऐड करना है. जिस तरह से पॉपुलेशन, पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जो है वो अगर आपको बता रहा है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो अगर 22 करोड़ है, कश्मीर की पॉपुलेशन इतनी है, सो इट मींस दिस वन इज नॉट द जनरल इंफॉर्मेशन एंड यू आर गोइंग टू गेट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी अथेंटिक इंस्टीट्यूशन, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो यू नीड टू गिव द रेफरेंस. ठीक है, कि हमने यहाँ से ये डॉक्यूमेंट लिया है, या फिर जिस तरह 1998 का अभी तक हम देते हैं क्योंकि बाकी स्टैटिस्टिक्स उस तरह से रिवील नहीं किए गए, तो जो भी रिसेंट इंफॉर्मेशन होगी सो यू नीड टू साइट इट. इज इट क्लियर? सो अगर जो है ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, शुड आई साइट इट? when if it's a quote, then yes, cite it and place double quotation marks around the text. And again, it's your choice which template you are going to follow. Either you are going to quote it within the text, या फिर जिस तरह से हम लोग उसको कोटेशन, अगर आप लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं, फिर आपको उसको सेंट्रलाइज टेक्स्ट को करने की जरूरत नहीं है. अगर आप टेक्स्ट सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो फिर आपको इन्वर्टेड कॉमास यूज करने की जरूरत नहीं है. अगर टेक्स्ट सेंट्रलाइज नहीं है, यूज फॉर दी इन्वर्टेड कॉमास कोट इट. यस प्लीज. डॉक्टर साहब, इसमें एक थोड़ी सी एडिशन करूंगी कि अगर 50 वर्ड से लंबी कोटेशन है तो फिर आप उसको सेंट्रलाइज और इंडेंट करते हैं, और अगर 50 वर्ड से छोटी कोटेशन है तो फिर आप उसको रनिंग टेक्स्ट में इन्वर्टेड कॉमास के साथ. So it's you know depend again on their text. जो टेक्स्ट है आपका उस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका टेक्स्ट अगर वो लेंथी है then you need to centralize it. If your text is not lengthy then you need to quote it. Is that clear? उसके बाद हम चलते हैं कि is it so if it's a quote, और अगर ये कोट नहीं है तो देन इज इट अ पैराफ्रेज, और अगर जो है वो पैराफ्रेज है तो फिर साइट इट, और फिर अगर जो है वो पैराफ्रेज नहीं है देन अ बिग नो. सो इट्स एन अदर आइडिया और द थ्योरी. अगर कोई आइडिया है या थ्योरी है सो यू नीड टू अगेन साइट इट. अगर नहीं है देन देयर इज नो नीड टू साइट इट इफ इट्स अ कॉमन नॉलेज टू योर थॉट्स. इज दैट क्लियर? So can we move on? Okay, so that was I will leave it to you again. This one is the second exercise कि आप उसको किस तरह से कर सकते हैं. I will leave all these slides with you. फिर उसके बाद है रेफरेंसिंग स्टाइल्स और उनके डिफरेंट मेथड्स के APA मैनुअल है, MLA मैनुअल है, शिकागो है, ट्राबियन जिसको हम लोग बोलते हैं. फिर अगेन जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, मैंडले जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. फिर यहाँ पर APA का जो है वो एक मैंने छोटा सा क्लिप जो है वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड किया. जिस तरह से ये यहाँ पर इसको कोट किया गया है तो इसको हम लोग रनिंग रेफरेंस भी बोलते हैं या फिर साइटेशन भी बोलते हैं. और ये दिस इज कॉल्ड योर रेफरेंस इन APA मैनुअल. ठीक है. और अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंसेस एंड द बिब्लियोग्राफी. रेफरेंसेस के अंदर यू हैव नो नीड टू गो अल्फाबेटिकली, यू नीड टू ऐड द
numbers, okay? लेकिन bibliography के अंदर you have no need to go by number, but you can use, there is one option in the laptop, आप लोगों ने शायद वो देखा भी होगा, MS Word के अंदर आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर आप उसको अल्फाबेटिकली क्लिक कर देते हैं, तो फिर A, B, C उस तरह से bibliography आपके सामने आ जाती है. So you have no need to add number in bibliography, but you have need to add number in the references. Is that clear? तो क्या समझ आई अभी तक कि references के साथ नंबर ऐड करने हैं? Yes. ठीक है, और bibliography के साथ नंबर ऐड नहीं करने, लेकिन उसको अल्फाबेटिकली करना है. ठीक है, सो लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू. ये जो हमें लर्निंग रेफरेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, साइटेशंस नजर आ रहे हैं, दिस वन इज ओनली इन APA मैनुअल. ठीक है, लेकिन अगर आप तरबियत मैनुअल को फॉलो करते हैं, शिकागो को करते हैं, देन यू नीड टू ऐड दी नंबर 1, 2 and 3 and this is also auto generated. So these all are the skills which you are using. ठीक है, क्योंकि ये वर्ड के ऊपर आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट है. These are the softwares, different softwares हैं आपकी रिसर्च के लिए जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इन चार के अलावा हम लोग यूज कर रहे हैं आज मेंडले, विच इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट वन. ठीक है, और वो जो मेंडले साइटेशन स्टाइल है, दिस वन इज ऑल्सो फ्री. सो ऑल दी सॉफ्टवेयर विच आई एम शोइंग हियर, ऑल आर दी फ्री. यू कैन सिंपली डाउनलोड इट in your laptop and you can utilize it. But keep one thing in your mind, all these softwares must be synchronized with your MS Word. That it will be really easy for you to use the whole library which you are going to use in the Mendeley, जो आपने वहाँ पर बिल्ड की है, जो आपने वेब से डिफरेंट रेफरेंसेस लिए हैं या आपने मैनुअली कुछ रेफरेंसेस ऐड किए हैं, तो आपकी पूरी लाइब्रेरी इस सॉफ्टवेयर की मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड विद द MS Word. ठीक है, जहाँ पर आपका बाकी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहा है. Is it clear? So it will be really easy for you. It will be only a single click and you can get a lot of references. आपने उसमें साइट कर सकते हैं. Is that clear? Can we move on? Okay. यहाँ तक Dr. Adila made it very easy for me and to move quickly related to the sources. So she told you about the sources and I put it the classification of the primary sources and the secondary sources. So she spoke very well related to the primary sources and the secondary sources, but I want to add the last one, and it's the tertiary sources or essay sources which are not falling in the category of the secondary and also in the category of the primary. Is that clear? So कौन से ऐसे sources हो सकते हैं? Last one is the dictionaries. लेकिन ये सारे एक्सट्रैक्ट कहाँ से किए जाते हैं? प्राइमरी सोर्सेज से और सेकेंडरी सोर्सेज से. जिस तरह से डिक्शनरीज हैं, इनको ना हम प्राइमरी सोर्सेज के अंदर ऐड कर सकते हैं ना सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर. सो द नेक्स्ट वन इज द विकिपीडिया. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर नॉट एबल टू गेट द डेटा रिलेटेड टू द एनीवन, सो दीज आर मोस्टली नॉट कंसीडर्ड एज द authentic one. Wikipedia, I never recommended it for my students because this one is the website which you can easily amend it. You can change it according to your own. So यहाँ पर कोई copyright उस तरह से नहीं होते. You, me, like everyone can amend the whole information, and most of the time information is not authentic on the Wikipedia, but it's really easy for you to get just a chunk of the knowledge. Is that clear? So विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडियाज आर मोस्टली इंपॉर्टेंट वन. लाइब्रेरीज के अंदर आपको मिल जाते हैं. फैक्ट बुक्स हैं, हैंड बुक्स हैं और डिफरेंट मैनुअल्स हैं. मैनुअल यू कैन ऑल्सो ऐड, जिस तरह से हम लोग आपके यूनिवर्सिटी के मैनुअल की बात कर रहे थे. जिस तरह से ये स्लाइड्स मेरी अपनी नहीं है, बिकॉज आई गेट दिस डाटा फ्रॉम द येल यूनिवर्सिटी एंड आई एडिट द रेफरेंस. Is it clear? So it means when you are going to give any presentation, so please make sure you are going to give the credit of the original source. So it means it's going to bring the authenticity in your presentation, in your assignment. Okay? Can we move on? So can यहाँ पर आप अगर ये वीडियो प्ले करते हैं,
So this one is the video, and this one is for all of us, and I hope we will learn it. Can you play? Let's keep back. I'm sorry, these are the technical errors क्योंकि हमारे पास साउंड सिस्टम नहीं था, so we are using two laptops to manage. Okay, can we play now? 1 second, 2 seconds. Okay. Acting with honesty, trust, fairness, respect and responsibility in learning, teaching and research. This includes doing your own original work, respecting and acknowledging the work of other people, and clearly stating when you use someone else's ideas, words or images by citing correctly in the body of your work, and referencing your sources accurately. Academic integrity involves recognizing people and publications that have influenced your thinking and taking personal responsibility for the way you behave in an academic context. It's important to complete individual assignments on your own or acknowledge who you work with in group assignments. You should always behave with integrity in exams and assessments. Failing to recognize someone else's ideas by not referencing, dishonestly working with another student on an individual assignment, or cheating on an exam or assignment can result in a charge of academic misconduct. नहीं ये तो आपकी अपनी है ना. Do you have extra one? Can you please pass it on? Thank you very much. So when you quoting directly from a published source, reference कब देना है? उसके justification क्या है? The sources of all citation should be reference. So that's why we need to give. We need to quote, okay? Again, second one, when using statistics or other data that is freely available from a publicly accessible website, do we need to cite it? Yes. Then, yes. Why? The sources of the statistics or the other data that you are used in assignment should always be referenced. कि कोई भी data हमें किसी भी वेबसाइट से मिलता है तो हमें उसका रेफरेंस देना है अगर वो स्टैटिस्टिक है. दैट कैन बी रिलेटेड टू द चाइल्ड लेबर, दैट कैन बी रिलेटेड टू द वुमेन वायलेंस, दैट कैन बी रिलेटेड टू द एट्रोसिटीज इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बाय द इंडियन ऑक्युपेशनल फोर्सेस एंड अदर सोर्सेज यू कैन यूज जिसमें पॉपुलेशन है. इफ इट्स द स्टैटिस्टिक डाटा देन यू नीड टू cite it, okay? Again, the third one is when summarizing the cause of the undisputed past events where there is agreement by most commentators on cause and effect. So, do we need to cite it? आपने क्या लिखा है? सबने लिखा है. Then answer is no. जब इस तरह से अगर कोई जनरल हो, then we have no need to add it. लेकिन उसमें जो second argument है, however the sources for any continuous discussion of the same event would need to be referenced. But again, if you are getting multiple opinions and that opinions are particularly related to the cause and effect, इस तरह से अल्ताफ साहब बच्चे किसी का क्वेश्चन तो था नहीं जो आपने पढ़े बगैर टिक किया है. दैट वाज योर ओन एक्सरसाइज, ओके? सो दिस इज कॉल्ड द एकेडमिक डिसऑनेस्टी. आई वांट यू टू बी ऑनेस्ट एकेडमिकली, इसीलिए पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, ठीक है? सो एकेडमिक ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर लाइन पर आपने यही बोलना है, ठीक है? जिस तरह से हम लोग खुद जो है वो एक सेल्फ उसको हम सलालिटी बोलते हैं. बीइंग अ रिसर्चर, आपकी सलालिटी खुद से जो खुद कलामी है वो यही होनी चाहिए. वी नीड टू बी एकेडमिकली ऑनेस्ट एंड वी नीड टू मेंटेन द इंटेग्रिटी, ठीक है? जो एकेडमिक इंटेग्रिटी है वी नीड टू मेंटेन इट. इज इट क्लियर? सो दैट वाज द थर्ड वन. अब हम जाते हैं फोर्थ पे. When paraphrasing a definition found on a website and when no writer, editor or author name is shown, तो क्या हमें साइट करना है? डेफिनेटली. बहुत सारे केसेस में
ऐसा होता है कि आपके पास ऑथर का नेम मौजूद नहीं होता। कई जगहों पर ऐसा होता है कि आपके पास पब्लिशिंग कंपनी का डाटा मौजूद नहीं होता, तो उसमें भी आप उसको स्किप करके वहां पर हम क्या लिखते हैं, NA नॉट अवेलेबल, और उसके बाद हम उसको रेफरेंस को कंप्लीट करते हैं। इज इट क्लियर? लेट मी ऐड वन थिंग, जिस तरह से अगर आप साइट कर रहे हैं, जिस तरह से 2006 लिख रहे हैं एपीए मैनुअल के अंदर, जो रनिंग रेफरेंस अगर हम लोग दे रहे हैं तो वहां पर आप 2006 लिख सकते हैं और ऑथर का नाम नहीं है, यू कैन लीव इट रादर देन ब्लैंक, यू कैन ऐड दी NA, ओके। एंड सेम विद द तुराबियन मैनुअल एज वेल, कि आपको जहां पर जो रेलिवेंट चीज नहीं है, अनटिल अनलेस कि आपके पास टाइटल लाजमी मौजूद होगा। आवाज कहां से आ रही है? ओके, सो आई जस्ट नाउ मुझे अभी समझ आए। खैर, जो जहां पर आपके पास अगर कोई भी एस्पेक्ट मिसिंग है रेफरेंस का, इट कैन बी रिलेटेड टू द ऑथर नेम, इट कैन बी रिलेटेड टू द पब्लिशिंग कंपनी, तो अगर कुछ भी मिसिंग है यू कैन ऐड दी NA, लेकिन आपको रेफरेंस कंप्लीट करना पड़ता है। नाउ सैम योर क्वेश्चन। मैम मेरा ये था कि इसमें दो स्टेटमेंट्स नहीं है मेरे पास, कि व्हेन पैराफ्रेजिंग अ डेफिनेशन देयर इज अनदर पार्ट। अब दूसरा जो है उसमें अगर हम डायरेक्टली वहां से लेते हैं फिर तो वी हैव टू रेफरेंस, बेशक हमारे पास कोई चीजें अवेलेबल नहीं है तो वी हैव टू नो, लेट मी टेल यू कि आपने रेफरेंस और कैसे कहां पर देना है, और प्लेजरिज्म से जब भी आप कहीं से 2 to 3 लाइंस भी अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। अगर आप उसको रीप्लेस कर रहे हैं फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना, लेकिन रेफरेंस दोनों सूरतों में जरूरी है। जी इट मीन आपके पास पूरा अगर उसमें से कोई एक एस्पेक्ट अगर मिसिंग है then you can write the not available. Is that clear? Yes. Sorry? हम लोग वेबसाइट जो है, मैंने पहले हम प्रेजेंटेशन जब मैं दे रही थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप वेबसाइट से ले रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं URL, जो लिंक जिसको हम लोग बोलते हैं उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर। लेकिन यू हैव टू मेंशन व्हेन यू आर गोइंग टू रिट्रीव द डाटा, कि व्हेन यू आर गोइंग टू रिट्रीव द डाटा आपने डेट मेंशन करनी है और आपने लिखना है कि रिट्रीव फ्रॉम, ठीक है, कि किस डेट को आपने उस डाटा को लिया है। ऐसा नहीं है कि वो डाटा जो है वो अगर वो 2019 का है एंड यू आर गोइंग टू मेंशन द डेट 2008, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 2008 का डाटा है यू कैन मेंशन टुडेज डेट, ठीक है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू रिट्रीव दैट लिंक, व्हेन यू आर गोइंग टू रिट्रीव द डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, देन यू कैन ऐड ऑल दीज रेफरेंसेस। यू कैन ऐड मोस्टली जो है हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं अगर वो ऑनलाइन मौजूद है तो तब भी हमें उनका लिंक देना है। अगर वो हार्ड कॉपी में मौजूद है तो फिर आपने उसका लिंक नहीं देना, लेकिन आप उसमें पब्लिशिंग वॉल्यूम और उसमें पब्लिशिंग डेट और उसके जो पेज नंबर है, अगर जिस तरह से ये जो मैंने आपको रेफरेंस दी है इसके 4 पेजेस हैं, यू कैन राइट 1 to 4। इज दैट क्लियर? तो इट मींस कि आपने कंप्लीट रेफरेंस देना है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ और प्रॉब्लम भी कंसीडर की जाती है। सोशल साइंसेस के अंदर हम मोस्टली हिस्ट्री के अंदर जो हिस्टोरियंस हैं वो टेम्पलेट फॉलो करते हैं तुराबियन मैनुअल को या शिकागो मैनुअल को फॉलो इसलिए किया जाता है बिकॉज इट गोइंग टू शो अ कंप्लीट पिक्चर। व्हाई कंप्लीट पिक्चर? इसमें हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि इस आर्टिकल के फलां पेज से हमने ये पैराग्राफ लिया है। बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स हैं जिस तरह एपीए मैनुअल के अंदर अब आके हम लोग पेज नंबर ऐड करना शुरू हो गए हैं, लेकिन कंप्लीट आर्टिकल पे कहां से ये शुरू हो रहा है कहां पर खत्म हो रहा है हम वो ऐड नहीं करते। सो इट इंटायरली डिपेंड्स अगेन ऑन योर मैनुअल। यूनिवर्सिटी का जो मैनुअल है आप उसको किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, वहां पर कौन सा टेम्पलेट दिया जा रहा है। इंटरनेशनली तुराबियन इज नॉट एक्सेप्टेबल। Few universities are using it, but APA is acceptable globally.
ठीक है, जिसमें आप रनिंग रेफरेंस दे देते हैं। लेकिन हिस्टोरियन के लिए मैं मोस्टली ये रिकमेंड करती हूँ गो फॉर दी तुराबियन मैनुअल, क्योंकि उसमें आप फुट नोट्स दे सकते हैं। एपीएम मैनुअल के अंदर आप फुट नोट्स नहीं दे सकते। तुराबियन मैनुअल के अंदर जब आप फुट नोट्स देते हैं आप बहुत ज्यादा डिटेल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास मेडिकल के भी स्टूडेंट बैठे हैं, हम वहाँ पर ये कहते हैं कि पैराडोल एक टैबलेट है विच इज यू नो आवर नेशनल मेडिसिन ऑफ पाकिस्तान। तो हम पैराडोल जो है अगर आप सिंपल लिखने के बाद अगर उसका फॉर्मूला लिखना है तो वो हम इट मीन्स वी आर गोइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ रीडर। इट मीन्स कि जब हम पैराडोल के साथ ही हम उसका अगली सेंटेंस के अंदर हम उसका फॉर्मूला बता रहे हैं, वो कब जो है वो बनाई गई और उसका प्रोसेस क्या था। तो अगर हम पैराडोल के साथ कितना कुछ लिखना शुरू हो जाते हैं तो इट मीन्स कि वी आर डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ द रीडर। पैराडोल के बाद आगे हम कॉमा लगा के पैरासिटामोल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज टू टैबलेट्स इन फुटनोट्स। तो जिसको डिस्क्रिप्शन चाहिए वो फुटनोट्स को पढ़ ले, लेकिन जो रीडर है उसकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो। आई वॉन्ट यू टू गेट बैक टू जो हमने सेंटेंस बनाया था चाइल्ड का। अगर हम चाइल्ड की डेफिनेशन उसी सेंटेंस में देना शुरू हो जाए कि फलां मुल्क के अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन ये है, पाकिस्तान के इस प्रोविंस के अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन ये है, इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्टर्ब रीडर। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं कर पा रहे। तो इट मीन्स कि जब आप इफ यू आर हिस्टोरियन, बहुत सारे मुझे एस्पायरेंट्स नजर आते हैं जो कश्मीर जस्ट यू टू गो फॉर दी तुराबियन मैनुअल। बट अगेन कहाँ पर आपने आर्टिकल अपना भेजना है उसके मैनुअल को आपको देखना पड़ेगा। बट यू कैन ऐड मोर डिटेल्स इन तुराबियन मैनुअल रादर देन दी एपीएम मैनुअल। कैन वी मूव ऑन? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या था, अभी हम लोगों ने ओके 5 पर है। When summarizing or paraphrasing the ideas of key commentator or author but taken from a secondary source, for example a journal reference book, तो क्या उसका जो है वो हमने रेफरेंस देना है? Yes. अभी 5 मिनट Why? आंसर दिया हुआ है you always need to acknowledge your source, even if this is a secondary source, even if it's a primary source. So we need to acknowledge the our resource, we need to give the credit, ठीक है, कि हमने कहाँ से लिया है। Why we need to give? Because it's going to enhance the credibility of your research. एक तो रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को enhance कर रहा है, दूसरा क्लियर पिक्चर दे रहा है कि इस पर कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा तीसरा प्लेजरिज्म से आप बचेंगे। Is that clear? And don't forget the academic honesty. ठीक है। So the sixth one, जी 6th one क्या आपने अब स्टार्ट किया? When summarizing in a concluding paragraph of your assignment what you discussed and referenced earlier in your text, क्या करेंगे? रेफरेंस नहीं देंगे आप? क्यों नहीं देंगे? Here is a debate. जब आप जब आप यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर रेफरेंस दे रहे हैं और आप उसको ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, सो देयर इज द 2 मेथड। नंबर 1, लेट मी ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। अगर आपने बुक का रेफरेंस दिया है शाहिद जवेद बर्की का, ऑथर का नाम क्या है? शाहिद जवेद बर्की। आप उसका रेफरेंस दे रहे हैं एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ भी आप ले रहे हैं शाहिद जवेद बर्की की बुक से, तो रेफरेंस कौन सा आएगा? आई वर्जन। इज इट क्लियर? इट मींस कि बुक सेम है, पेज नंबर सेम है। इज इट क्लियर? अब आप एक पैराग्राफ पे 2 पैराग्राफ हो गए शाहिद जवेद बर्की के। अगली जो बुक है हम एसएम बर्की ले लेते हैं। 2 पैराग्राफ शाहिद जवेद बर्की के हो गए, दूसरा जो है वो एसएम बर्की का ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो तीसरा पैराग्राफ है उसका हम रेफरेंस दे देते हैं, फिर से हम शाहिद जवेद बर्की की बुक पर आ जाते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर आईवर्ड यूज करेंगे? नो, मतलब वो उसको हम लोग पहले शॉर्ट फॉर्म कहते थे, उसको बोलते हैं ऑप्सिट, OPCITE, कि वो रेफरेंस जो एक को छोड़कर प्रीवियस दिया गया है। ये वर्ड एज इट इज पहले हम लोग
अब ये चेंज हो गया है। अब ये चेंज हो गया है, हम क्या करते हैं कि सिर्फ ऑथर का नाम लिखते हैं और बुक का नाम लिखते हैं। जो बाकी डिटेल्स हैं पब्लिशिंग कंपनी की, पब्लिशिंग एजेंसी की, ठीक है, और पब्लिशिंग डेट जो क्या है, पेज और कुछ नहीं ऐड करते, लेकिन सिर्फ 3 चीजें ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट रेफरेंस। नंबर 1 ऑथर नेम, बुक नेम और पेज नंबर। तो इट मींस दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रेफरेंस, जिसको ट्रांसफॉर्म किया गया फ्रॉम दी ऑफसेट। इज इट क्लियर? सो इसके अलावा जो है हम we are at 6 months. So when including in your assignment paragraphs or graphics that are freely available on the internet and then no named photographer or originator is shown, तो क्या करना चाहिए? रेफरेंस देना है कि नहीं देना? बिल्कुल देना है कि कहीं से भी अगर हम लोग जो है वो ले रहे हैं तो हम लोगों ने ग्राफिक्स हो, इमेजेस हो, सो वी नीड टू गिव दी रेफरेंस। सबका ठीक है या गलत है या अभी ठीक कर रहे हैं? ठीक है। ओके, 8वें पर हम जाते हैं। तो क्या है कि when emphasizing an idea you have read that you feel makes an important contribution to the points made in your assignment, तो क्या रेफरेंस देना है कि नहीं देना? पीछे क्या लिखा हुआ है? हाँ, देना है। ठीक है, इट मीन्स कि जब हम अपना आइडिया जो है, अगर कहीं से आइडिया ले रहे हैं तो उसको हमने अपने अल्फाज में भी लिख रहे हैं, फिर भी आइडिया क्योंकि हमारा नहीं है, मैंने आपको केस बताया, ठीक है, रेफरेंस हमने देना है और खुद क्रेडिट नहीं लेना। इज इट क्लियर? अब हम बात जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हेन समराइजिंग अनडिस्प्यूटेड एंड कॉमनप्लेस फैक्ट अबाउट द वर्ड, रेफरेंस देना है कि नहीं देना? क्योंकि वी नीड टू फर्स्ट ब्रिंग द क्लैरिटी, कि जहां पर हमें क्लियर आर्गुमेंट, हमारे आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए डाटा मिलेगा, देन वी कैन ऐड दी रेफरेंस। इज इट क्लियर? अदरवाइज हमने रेफरेंस नहीं देना। किस किसने लिखा था देना है? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हेन यूजिंग ओके एफ्रोजम्स सच एज, ये आगे एक लिखा हुआ है, एक फ्रेज लिखा हुआ है, जिस तरह से हम लोग ये कहते हैं कि सवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह, कि ऐसे इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा एफ्रोजम जो है बेसिकली इट्स अ टर्म एंड इट्स अबाउट कंडक्टिंग जो एक जनरलाइज फिनोमेनास हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम लोग जानते हैं, तो हमें उनको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती। या यू कैन से ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन होती है हम उसको हम लोगों ने नहीं, व्हेन यूजिंग इसको आप लोगों ने रेफरेंस देना है कि नहीं देना? ठीक है, तो इट मीन्स रेफरेंस। ओके, वी कैन डिबेट ऑन इट। इसमें आप पे डिपेंड करता है जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं कि sovereignty belongs to Allah. So this one is the clear picture, so we have no need to give the reference. So if you are quoting Kufi Annan, अगर हम उसकी कोई भी कोट जो कि एक जनरलाइज है तो हमने उसका रेफरेंस देना है। सो इट अगेन डिपेंड ऑन योर डाटा या रेफरेंस जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं। जी हमजा, they need to give। बहुत सारे आप ये देखें कि जिस तरह से बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं, जब भी कोई असाइनमेंट होती है, कोई प्रेजेंटेशन होती है या थीसिस सबमिट करवाते हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं। दिस वन इज नॉट जनरली एक्सेप्टेबल, दिस इज ओनली फॉर दी मुस्लिम्स। लेकिन जब आप अपना थीसिस सबमिट करवाएं, यू हैव नो नीड टू गिव ऑल दीज टू गो फॉर ऑल दीज पेजेस अनटिल अनलेस आपके फॉर्मेट के अंदर ये चीज शामिल ना हो, अदरवाइज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीजें वहां पर ऐड नहीं होती। इज इट क्लियर? सो कैन वी मूव ऑन? ओके जी, नेक्स्ट वन के रेफरेंसेस कहाँ पर लगाए हैं आपने, जल्दी से बता दें जी। आप जरा कील के सामने शो करेंगे जी, वहाँ जी इधर देखें, अपनी की जरा मैच करें जल्दी से। मतलब आप जरा हेल्प करें इनको जी। एक्सरसाइज नंबर 2, वेयर शुड द साइटेशन गो, कहाँ पर आपने लगाए हैं? ठीक लगाए हैं जी? नहीं लगाए? ठीक लगाए। चले जी आगे।
अब इसमें पहले पैराग्राफ के अंदर 2 रेफरेंस क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि 2 डिफरेंट स्टडीज हैं, ठीक है? इज इट क्लियर कि जहां पर एक स्टडी खत्म हो रही है तो वहां पर हम दूसरी स्टडी को यूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी नीड टू गिव द रेफरेंस ऑफ दीज 2 स्टडीज। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट वन जी, सेकंड, यहाँ पर जो है वो क्या हमें रेफरेंस कितने देने हैं? एक ही, क्योंकि वो एक ही स्टडी की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा थर्ड वन जी, रेफरेंस कहाँ पर लगाया आपने? सही लगाए हैं। चलें जी, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे। जी बताएं क्या लिखा है आपने? जी करें रिलेट जरा। जी मतलब सब लाइन को हेल्प कीजिएगा। जी किसके कितने आंसर की ठीक है? पढ़ी थी आपने? जी जी किसके कितने ठीक है? जी वाओ, यू वंडरफुल। आप वो स्टूडेंट्स हैं जो पेपर ब्लैंक छोड़ जाते हैं और हम जैसे टीचर फिल करते हैं, ठीक है? जी ठीक है। तो इसमें आप जो है वो देखें कौन से, आप प्लीज आंसर की उसको फिर से ऊपर लेकर जाएं। जी नंबर 1, I didn't reference the source in text of the assignment because I put the source in bibliography. So इसकी आंसर की क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? Why readers need to match in the text. For example, आप ये देखें कि आपने अगर एस.एम. बर्क की बुक का रेफरेंस दिया है साइटेशन के अंदर, और आपका जो रीडर है वो पूरी बिब्लियोग्राफी देख ले तो उसको एस.एम. बर्क का नाम ही नहीं मिलता। बाद में पता चलता है कि या तो आपने टाइपिंग एरर की हुई है, कोई टाइपो एरर है, या फिर आप उसका डिटेल रेफरेंस देना भूल गए हैं बिब्लियोग्राफी के अंदर, या फिर उसका जो कंप्लीट रेफरेंस है वो आप भूल गए हैं। इज इट क्लियर? बहुत सारे रिसर्चर्स जो नए होते हैं, हम जैसे जो अभी अर्ली करियर होते हैं, वो ये भी गलतियां करते हैं कि वो रनिंग रेफरेंस भी देते हैं, वो फुटनोट्स भी देते हैं, और वो एट द एंड बिब्लियोग्राफी भी लिखते हैं। तो बताएं कि क्या ऐसा करना है? नो, इट मीन्स कि हमने एक ही मैनुअल को फॉलो करना है और ज्यादा फोकस जो है वो रेफरेंसेस पर करना है। व्हाई? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। हमारे यहाँ जब भी थीसिस, जनरल प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, आई कैन नॉट बी स्पेसिफिक, जब भी थीसिस एवेल्युएशन के लिए जाता है पाकिस्तान के अंदर भेजा जाता है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर, और फिर आपका अगले दिन वाइवा होता है और आपका जो एक्सटर्नल है वो आपका थीसिस हाथ में लेकर आता है, और वो क्या करता है? ये जो लास्ट के ऊपर ये जो रेफरेंसेस हैं, ये आपने कॉमा सही नहीं लगाया, ठीक है? ये आपके जो लास्ट पर हैं, ये आपने इनकी तरतीब सही नहीं दी, बिकॉज दे डोंट वांट टू पुट एफर्ट ऑन द आर्ग्यूमेंट्स, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन योर रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोग कश्मीर की बात करते हैं, हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं, और वहाँ पर जो है एजी नूरानी की बुक जो है उसको हम लोग ऑथेंटिक कंसीडर करते हैं या वेल रिसर्च्ड कंसीडर करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर जो है वो आप 370 की बात कर रहे हैं और आपसे आपका एक्सटर्नल ये पूछता है कि आपने एजी नूरानी की बुक पढ़ी है, और आप ऐसे जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये कौन सी बला है, ठीक है? देन इट मीन्स कि यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर कि आपके पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, आपने उन सबको कंसल्ट किया है या नहीं किया। जब तक आप सोर्सेज कंसल्ट नहीं करेंगे, आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जब आपसे वाइवा होता है तो आपसे सिंपल ये पूछा जाता है, अच्छा आपने कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट की हैं? अभी आप लिस्ट निकालने लगते हैं, आपको याद भी नहीं होती कि आपने कौन कौन सी, क्योंकि आपने सिंपली जो है वो नंबर बढ़ाए हुए होते हैं। सो आपने के जहन में होना चाहिए कि आपने कौन सी बुक्स। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप ये दूंगी कि आपसे रेलिवेंट जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, आपके टॉपिक से रेलिवेंट, आप उनकी एक अलग से समरी बनाते जाएं। और जब आप लिटरेचर व्यू करें, एक तो लिटरेचर व्यू सेपरेट हो गया, अपनी रीडिंग के लिए भी आप एक लिस्ट बनाते जाएं जो फ्यूचर में आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए कि ये बुक्स हैं और मैं उनको
उनको डिस्कस जो है वो आप कहीं पर भी आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आजकल जो है I really encourage all of you to go for the book reading, but again if you are कामचोर like me, ठीक है, so you can simply कि search any book on Google, ठीक है, Google बाबा जिंदाबाद, तो आप वहां पर जो है बुक्स की समरीज जो है वो आप ले सकते हैं और फिर आप किसी भी महफिल में इस तरह जिस तरह आज हम सारे आप पर जो है वो इल्म झाड़ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं एक लंबी लिस्ट के मैंने ये भी पढ़ी है, इस बुक के अंदर ये है, ये आर्गुमेंट डेवलप हुआ है। सो दिस इज जस्ट जोक, बट आई वुड इनकरेज यू कि आप बुक रीडिंग की तरफ जाएं और आपको इस चीज की ग्रिप होनी चाहिए कि आपके टॉपिक या सब्जेक्ट के ऊपर जिस पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं कौन सा न्यू लिटरेचर अवेलेबल है, कौन सी बुक्स मार्केट के अंदर आ रही हैं, सो यू कैन कोट इट। ओके, इज दैट क्लियर? सो इसी तरह से ये बाकी आंसर की जो है आपने सारे करेक्ट कर लिए आंसर, ठीक है। आई एम लिविंग ऑल दीज आंसर कीज विथ यू फॉर वन मोर प्रैक्टिस एट योर होम्स। सो अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, एक लास्ट पार्ट छोटा सा रह गया है हमारे सेशन का। लेटर ऑन आई विल स्पेयर यू, लेकिन हमने ये सोचा है कि हम तीनों मेंटोर्स ने जो सामने बैठे हुए हैं, हम आपके साथ कुछ एक्टिविटीज करेंगे। एक तो ये एक्टिविटीज हैं जो सेशंस के दौरान हुई हैं, एंड अगेन यू कैन ब्रिंग योर आइडियाज एंड वी आर हियर टू पॉलिश इट। इज दैट क्लियर? सो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अगेन वन मोर एक्सरसाइज, ठीक है। सो कुछ सीखा है आज के? जी प्लीज, कैन यू प्लीज पास? ठीक है, इसको अरेंज करना है अच्छे से, सिंपल। सबको मैनुअल मिल गया है? ठीक है, तो मतलब अभी आप फ्री हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्योंकि लैपटॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, अनफॉर्चुनेटली माई मिस्टेक, एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, आई कुडंट इन्फॉर्म यू टू ब्रिंग योर लैपटॉप्स। लेकिन अगर होता तो हम उस पर प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन अभी जो है हम जुबानी कलामी जो है हवा में बातें करते हैं। ऐसा है कि आपने लैपटॉप जब आप उसमें आपने मेंडले की वेबसाइट पर जाना है www.mendeley.com, वहाँ पर जाकर आपने 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। नंबर 1 इज मेंडले रेफरेंसिंग, नंबर 2 मेंडले वेब कनेक्टर, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपने मेंडले मैनेजर के ऊपर आपने बात करनी है। अब इन तीनों का जो है मैं आपको लिंक एक दूसरे से बता देती हूँ। नंबर 1 इज मेंडले सॉफ्टवेयर, जिसको आप सिंपली डाउनलोड करेंगे और अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पर आप सेव करेंगे। नंबर 2 आपने मेंडले वेब मैनेजर इंस्टॉल करना है। इसका पर्पस ये है कि जब आप मेंडले सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल कनेक्ट योर डेस्कटॉप टू इंजन सर्च, जो भी गूगल इंजन है उसके साथ वो आपको कनेक्ट कर देगा और आप वहां से सिंपली अपने रिसर्च से रिलेटेड जो भी बिब्लियोग्राफी, जो भी मटेरियल, रिसोर्सेज इन शेप ऑफ आर्टिकल्स, बुक्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप सिंपली क्लिक करके उसको ऐड करते जाएंगे और अपनी लाइब्रेरी बनाते जाएंगे। अब हमने इतना सारा जो काम किया कि एक हमने वेब मेंडले जो है सॉफ्टवेयर उसको भी डाउनलोड किया, वेब मैनेजर भी किया, लाइब्रेरी भी ऐड कर ली। एक आप उसमें वेब के थ्रू जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, दूसरा मैनुअली जो आपके डेस्कटॉप के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको भी आप मेंडले के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अब ये जब पूरा सॉफ्टवेयर हमने लाइब्रेरी बना ली है तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक और एप्लीकेशन चाहिए जो मेंडले को कनेक्ट करे आपके MS वर्ड के साथ। तो जब आपके ऊपर बहुत सारे आप जब रेफरेंस देते होंगे तो आपको नजर आता है APA मैनुअल है, त्राबियन मैनुअल है या डिफरेंट मैनुअल आपको नजर आते हैं, तो आप वहां पर क्लिक करने के बाद उसमें रेफरेंसेस जो हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसको ऑटो जनरेटेड जो रेफरेंसेस हैं वो इस तरह से बन जाए। तो इस
पूरे जो मैनुअल आपको दिया गया है मेंडले का 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर आप सिंपली जो है उसको फॉलो करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गेट दिस मैनुअल फ्रॉम मेंडले वेबसाइट. इट ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी. EndNote is also very easy software for the references, लेकिन Mendeley because it's free of cost, so you can install it as a beginner and you can manage the references of your document or any research project. Is it clear? And you can also go for the cross references, so it's your choice कि आप कौन सा method जो उसको follow करना चाह रहे हैं. So this was from my end. So if you have any question, you can ask. I'm here to answer your queries. Thank you very much. प्रेजेंटेशन थी, मैंने इनको ज़ोटेरो के अलावा भी जो है वो 4 और सॉफ्टवेयर, वो 3 बताए हैं. दीज ऑल आर द फ्री. इनके पास है ये ना, ठीक है. आपने उनको जो है वो डाउनलोड करना है. इट्स योर चॉइस, ठीक है. बिकॉज आई एम यूजिंग मेंडले, सो दैट्स व्हाई आई वाज इन प्रैक्टिस विद दैट. इसलिए मैंने इसका मैनुअल शेयर किया. अदरवाइज जो मैंने आपको बाकी सॉफ्टवेयर के ऑप्शन दिए हैं और वो भी सारे फ्री हैं, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं. और इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि आप उनकी जो है उसको जो है जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मुझे जो है वो बर्दाश्त करने के लिए. जी जी प्लीज आप. जी डॉक्टर साहिबा. एक छोटी सी और भी अनाउंसमेंट है कि हम लोग अगला 1 घंटा यहीं पे हैं. हाँ. तो अगर आप में से कोई हम में से किसी से भी पर्सनली डिस्कस करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम. रिसर्च टॉपिक्स, रिसर्च इश्यूज या इन जनरल विद रेफरेंस टू रिसर्च, so we are here. तो आप हम में से जिसके साथ चाहें. Workshop was successful and we conveyed our message. We tried our level best. We all are beginners like you, but we are trying our level best to engage you in our sessions. Like Dr. Adila, Dr. Rahul, so they did a wonderful job. I heard their sessions, although I was very poor apart from them. So ऐसा है कि इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि students would be comfortable Okay. coming to us. So that's better if we divide them into Okay. and you can do that. इनको जो है ना one thing I'm not aware about the culture, लेकिन I want you to integrate rather than to gender inequality यहाँ पर इतनी clear है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है there is no interaction. नहीं ऐसा नहीं है. We want you कि हम इस जेंडर जो इनक्वालिटी है, नहीं हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर भी एक हो. सो प्लीज हमें जो है वो इक्वालिटी नजर आनी चाहिए. एक ही ग्रुप के अंदर जो जेंडर है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है. नहीं हाँ आप ग्रुप बनाएं, ठीक है. ठीक है.